Ladies, I'm Nida Abbas from BBA2B. How are you? Hope you all would be in the best of health, inshallah. As we all know, पिछले कुछ I'm audible to you? Hello? Yes. Okay. As we all know, पिछले कुछ टाइम से अवेयरनेस वीक चल रहा है. अवेयरनेस इन अ सेंस किसी ने हमें अवेयर किया अबाउट our hormones function, तो किसी ने हमें बताना चाहा how to grab opportunities in COVID. I want to contribute to in this awareness campaign, so I arranged this meeting with the help of Miss Madiha, Ma'am Parise, and my lovely fellows. हमारी लाइफ में कुछ मूवमेंट ऐसे होते हैं जिसमें हमें पता होता है व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, बट कभी हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाते व्हाट इज एथिकल एंड व्हाट इज नॉट. जस्ट एन एग्जांपल, वी ऑल हियर एंड सेड दीस टाइप ऑफ सेंटेंसेस लाइक मेरे जो दिल में होता है मैं वो ही कहती हूँ, सच तो हमेशा कड़वा होता है, या मैं तो हमेशा सच कहती हूँ चाहे किसी को बुरा लगे. क्या आपको मालूम है आपके इस कड़वे सच की वजह से किसी की ज़िंदगी में किस हद तक कड़वाहट घुल सकती है? आपके लिए कितना आसान है किसी के कलर, हाइट, वेट एंड ब्यूटी पर टर्न करना, बट ये सो कॉल्ड सच किसी के मेंटल हेल्थ पर किस हद तक असरअंदाज हो सकते हैं, क्या आपको इस बात का अंदाज़ा है? In this generation, 70 to 80% women face stress, anxiety, depression just because these type of stereotypes and beauty standards. My topic is stereotypes and standard of beauty. Thank you, Ma'am Parise, to join us, Miss Madiha, to give me this opportunity, and thank you, my fellows. My, my guest is Ma'am Parise. She completed her business studies from Greenwich University. She is a marketing manager at Clippers. For further information, I would like to invite Ma'am Parise. Ma'am, would you like to introduce yourself? Ma'am Parise? Hello. Hello. Hello, Miss. Yeah, am I audible to you? Yes, Miss, yes. Okay, tell me one thing. Do I have to do video or audio is fine? Miss, जैसे आपकी मर्जी. अच्छा चलें, I'll do video and then I'm gonna switch later. Okay. Okay, Miss. Hi. Can everybody see me? Yes, Miss. Okay, so my name is Parise and I have not completed my bachelor's as yet. I'm still studying, and and I do work for Clippers, but that's not why I'm here today. I don't know if you guys read, abhi some days ago, I wrote a post on SSP and I wrote it on my profile too, and I made it public. The reason why I wrote it was that just a second. मिस आप म्यूट हो गई हैं. मैं म्यूट नहीं हुई, मुझे होस्ट ने म्यूट कर दिया. क्यों? Why? अब आ रही है. जी, I am. Please don't mute me again. That's How are you, Miss? I'm good, alhamdulillah. Yeah, I would like to answer your question. I think for me, beauty would be ikhlaq. Ikhlaq, okay. Yeah, the most beautiful person for me would be कि जिसके इखलाक अच्छे हैं, जिससे बात करके मुझे अच्छा लगे. I read somewhere, I heard somewhere कि एक अच्छे शक्ल को आप रात तक याद करते हैं, but in the end of the day, at the end of the day, जो अच्छा दिल होता है वो आपको
जरूर याद रहता है. Well, that is true, but I'm asking about कि जब आप the first thing you see in a human being, जैसे if you meet, अभी आप मुझसे मिलिए, ठीक है, you won't really know what how I am. मतलब मैं कैसे समझाऊं कि मैं अच्छी हूँ by nature या I'm very bitchy or something. So what's the first thing that you see? मतलब हमारे जो यहाँ पे ये and what you're talking about, ये I think शायद 8% लोगों का कहना होगा in our society. Literally, I'm not even kidding. And I'm saying this out of my own experiences that I've had since I was a child. So the general perceptions that we have of beauty hair in our society are गोरा होना चाहिए, ठीक है, गोरे हैं तो खूबसूरत हैं, वो भले जैसे भी हो. You have to be thin, you have to be fit, बहुत मोटी हो रही हूँ ये मतलब, and you have to be tall, you have to have long hair. मतलब मैं इस चीज का आपको पता है कैसे आइडिया दूं? जैसे पोइट्री सुनी है, पोइट्री में भी ऐसे ही कुछ बयान करते हैं कि हिरनी जैसी चाल, बल खाती कमर, गजाली आंखें, गुलाबी होंठ. तो ये हमें ना, when we read these things, when we see them on television, that's where we develop the concept of beauty, that okay, this is what beauty is. Now मैं आप लोगों को, let me give you a little background of me, that when I was 9 years old, I got burned. Say it. I was a severe 3rd-degree burn case, and 48% of my body was burned. I was caught in fire with my cousin brother. Unfortunately, he couldn't make it, so he left us that day only. And which was, my family didn't tell me that till 1 year. You won't imagine. मुझे 1 साल तक नहीं पता चला था that he's not with us. I was talking to him over the phone, and it was actually his elder brother who used to speak to me, but मुझे ये बता दिया गया था कि that they've shifted his hospital and all, because it's said to be very traumatic for the patient. That's why they didn't disclose that. I know the pain and the agony that I've been through as a kid. I mean, I remember praying every night before they used to sedate me with morphine and all. I used to pray that I wouldn't wake up in the morning, because I can't even explain the pain that I've been through. But after months, I couldn't walk. I was actually a mummy. They wrapped me around in bandages. I didn't wear any clothes. तो मैं कर करके अल्लाह कर करके alhamdulillah, I stepped out of the hospital. And do you know the day when I stepped out, मैंने रोडें देखी, मैंने लाइटें देखी बाहर की, मतलब I was literally in an isolation. जैसे आजकल कोरोना की isolation करते हैं ना, मैं उससे बदतर isolation में थी, because burn cases tend to have very serious infections. तो मेरी अम्मा को भी नहीं मिलने देते थे मुझसे, क्योंकि infections हो जाए ना तो वो बहुत fatal होती हैं in burn cases. तो उसमें ये हुआ कि जब मैं बाहर निकली, I remember I thought कि finally it's over, I'm going home and everything, but little did I know that where I was going, that's going to be more harder than where I was. Literally, I'm not even kidding. मैंने ऐसी बातें सुनी अपनी जिंदगी में कि मैं जब when I started, मैं कोई I'm so sorry, I'm having such a bad throat. मैंने जब देखा कि I think I'm going to turn off my camera. I'm sorry, excuse me, I need to have a little water. अच्छा, तो जब मैं घर आई, तो वहां पे आके जब हमारे
रिश्तेदार और ये सब आए मिलने, मेरी अम्मा से ऐसी ऐसी बातें करी उन लोगों ने कि अब ऐसे क्या गुनाह किए थे कि इतनी बड़ी सजा मिल गई। आई मीन सुने, आप लोग सिर्फ सुने, ठीक है। मैं आई रिमेम्बर आई वाज प्लेइंग, आई हैव सच विविड मेमोरीज ऑफ दीज थिंग्स। आई वाज प्लेइंग म्यूजिकल चेयर्स, मेरी एक दोस्त की बर्थडे थी तो उसमें, और मैंने गलती से एक बच्ची को, मेरा हाथ लग गया था। आप लोग, you won't believe she created a scene over there. Well, you know what she did? She said, ew, 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 it. She called me it. She referred to me as it. She said it. She referred to me as it touched me. And then she went and she washed her hands. Parishe, please take your time. Have some water. Yeah, that's what I'm doing. There is no I hurry. just had a Strepsil. I'm having such a bad cough. I totally can't Corona relate ke to it because of weather and something, but take your time, ma'am. No issue. Yeah, just give me like 2 minutes. I'm gonna get Sure. No issues. some No honey issues. for me. हाँ जी जरूर.
Hello. Yes, ma'am. Okay, I'm so sorry for that. No, ma'am. Where was I? म्यूजिकल चेयर वाला इंसिडेंट आप शेयर कर रही थी. हाँ, तो वो उस बच्ची ने, she called me it. She referred to me as it, and she went and she washed her hand. मैं पता है अब आके सोचती हूँ कि मैं 10 साल की थी ना उस वक्त, वो बच्ची भी 10 साल की ही थी, उसके दिमाग में ये बात कैसे आई? मतलब एक 10 साल के बच्चे में ये बात कैसे आ सकती है, दिस इज डिस्गस्टिंग और शी इज अगली और व्हाटएवर, कैसे? वो बड़ों को सुनते हैं, सही है, they're watching this thing, that's why this comes to their head. Now moving on, this is what I want to talk about. Okay, this is a concept of beauty that we have in our society. मतलब ऐसी लोग बातें करते हैं ना कि अब तो जल गई, अब शादी भी कौन करेगा, इसको अपनी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देना चाहिए. और मैं ये बातें खुद से नहीं बना रही हूँ, ये बातें सुनी हुई है सारी. तो so my point is that these are the stereotypes in our society. मतलब मैंने अपनी 23 साल की जिंदगी में ना किसी जली हुई या किसी ऐसी लड़की को who has scars on her face, I have not seen her roaming around openly on the roads. Why are they covering their faces? चलो आप हिजाब कर रहे हो ना, that's something else. लेकिन why are they forced to cover their faces? Why? Because of people, because of what they say. पता है बोलना बहुत आसान होता है कि it shouldn't matter to you लोग क्या कहते हैं क्या नहीं कहते. मतलब मुझे बचपन से यही पट्टी पढ़ाई गई है, बट एट द एंड ऑफ द डे इट डज मैटर. जब मैं अपने 4 दोस्तों के साथ खड़ी होती हूँ और मुझे कोई गुजरते हुए करता है तो मुझे बुरा लगता है. आई डू फील लाइक द ऑड वन आउट. एंड माय क्वेश्चन इज दैट who gets to decide what beauty is? मतलब who's deciding who's beautiful and who's not beautiful, right? And moreover, the concept of beauty is also culturally based, जैसे यहाँ पे we would consider गोरी लड़कियां खूबसूरत, but in America when you go over there तो वहाँ पे गोरे जाके they're taking sun baths and all to get tan. सही है. My cousin, when she was living over here, Alisa, तो she had a tan complexion. तो यहाँ पे उसको सब बचपन से she was bullied for being of a darker complexion, but when she moved to Australia, people used to come and ask her that where did you get your tan from? So you see the difference that I'm talking about. And secondly, what we consider beautiful now, it's largely dependent on our media. अब मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देती हूँ. अभी कोई मूवी है तो उसमें हीरो ना हमेशा एक हैंडसम सा हल्क होगा, ठीक है, और बॉडी होगी उसकी फुल, मतलब सेक्सी सा. और वहां पे दूसरी साइड पे विलन्स जो होते हैं वो अमरीश पुरी जैसे होते हैं, दांत निकाल के खड़े रहते हैं. मतलब व्हाई? अब ये देखें, दिस इज मैं आई वुड लाइक टू रिलेट दिस विद द टर्म हेलो इफेक्ट. I don't know if you guys have heard about it or not. In psychology, there's a term which is called the halo effect. अब उसमें क्या होता है हेलो इफेक्ट में, कि हमारे पास जब इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन होती है ना किसी चीज के बारे में, तो हम खुद फिर भी अज्यूम अ कंक्लूजन. लाइक फॉर एग्जांपल कि अगर एक्ट्रेस है तो बदकिरदारी होगी, ठीक है, इसके तो बहुत बॉयफ्रेंड्स होंगे, इसका तो ये होगा, इसका तो वो होगा, जबकि हम जानते नहीं है उसको, ठीक है. And secondly, another thing that we pursue as the halo effect over here is that कि जो एक इंसान हमें खूबसूरत लग रहा है ना तो वो अच्छा ही होगा,
ठीक है, खूबसूरत है ना वो, भले जैसा भी हो, लेकिन वो द पर्सन लुक्स गुड, तो अच्छा ही होगा, वो उसका सब अच्छा होगा। मतलब here in our society we have unrealistic and irrational standards of beauty, don't we? I mean, I'm sure you all must have also went through something. मेरा तो चलो बहुत extreme case है, सही है, but I'm sure you all must have also been bullied some point in your life. Weight ज़्यादा है, weight कम करो, सही है, don't you use any fairness creams and all? Why? Would anyone like to share their experience? Ma'am, I want to like my experience. I want to share my experience. मेरी हाइट अपने सिबलिंग्स में लंबी है और कजन्स में भी, तो लोगों ने उस पर इतनी बातें बनाई है, इतनी लंबी, इसके लिए दूल्हा कहाँ से मिलेगा, अब इससे ज़्यादा ना बढ़ो। भाई मैं खुद थोड़ी ना बढ़ रही हूँ, मुझे अल्लाह पाक खुद बढ़ा रहे हैं, कौन सी खाद डाली है, क्या खाती हो, एंड दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस भाई। और अरे मिस होता है मैम मुझे भी भाई। शेयर करना है Yeah, go ahead. अपना एक्सपीरियंस। मैं जो है ना हाँ। थोड़ी पतली हूँ, मतलब मेरा वेट अपनी एज हिसाब से भी कम है, तो लोग मुझे इतना बोलते हैं तुम कुछ खाया करो, खाती, जैसे ही मैं कुछ नाम अपना बता दूं, कुछ खाती नहीं हूँ, खाया करो, बस यही आता है। और मुझे इतना बुरा लगने लग गया अब ये चीज, तुम इतनी पतली हो गई हो, तुम इतनी पतली लग रही हो, और तुम तो नहीं, तुम तो यूनिवर्सिटी की नहीं लगती। मतलब मुझे ऐसे ऐसे मिलते हैं। हाँ तो यही तो मेरी बात है, मोटे यानी हैं तो भी नहीं मतलब अच्छे लग रहे, पतले मैम हैं तो भी मोटा होना अच्छे भी नहीं लग रहे, वो है छोटे और भी नहीं पतला अच्छे होना भी। लग रहे, लंबे भी हाँ, अच्छे नहीं मतलब लग रहे। दुनिया को किसी हाल में चैन ही नहीं है। तो यही बात है ना, देखो everyone has their own conception of beauty. मुझे लगता है ना मैं खांस खांस के अपना गला फाड़ दूंगी आज। Does anyone know something that helps with cough? I literally can't speak. I have to put you guys on mute so that I can cough. Dear, I recommend you honey, और एक herb होती है, my sas used to mostly in our giving us in our coughs, तो वो जो है उसे कहते हैं कुछ, एक मिनट, मुझे एक मिनट नाम याद करना पड़ेगा। शहद एंड काइंड ऑफ काली मिर्च, इट्स नॉट काली मिर्च, तो वो फिलफिल दराज, यस, फिलफिल दराज इज अ फिलफिल हर्ब दराज? नेम। यस, फिलफिल दराज इज अ हर्ब नेम ना। सो वो आप जो है शहद में पीस के जो है वो आप चाटें, जैसे बिल्कुल शहद और काली मिर्च होता है वैसे ही जायका है, लेकिन लिटरली इट्स मैजिकल। मुझे तो मैं हमेशा लोगों को रिकमेंड करती हूँ अब तो, जैसे ये मेरा ब्रांड है। I'm gonna write it down. शहद और हाँ बिल्कुल, फिलफिल दराज, फिलफिल दराज एक हर्ब होती है, बिल्कुल लकड़ी टाइप की होगी, वो आपको आराम से मिल जाएगी, बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं है हर्ब पंसारी की दुकान पे। और वो आप जो है वो शहद में वो पीस लीजिएगा, काली मिर्च की तरह हो जाएगी, पाउडर बिल्कुल बन जाएगा, और उसके बाद शहद में मिक्स करके, जैसे काली मिर्च और शहद होती है, वो आप खाएं। 1 दिन के अंदर आपको, अगर इंशाल्लाह अल्लाह चाहेंगे तो शिफा देंगे। इंशाल्लाह 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 इंशाल्लाह। थैंक यू सो ऊपर मच। से यार गर्म पानी में शहद डाल के, तो अभी फॉर क्विक रिलैक्सिंग थिंग तो यही है कि आप जो है वो थोड़ा सा गर्म पानी पियो,
शहद में डाल के, शहद डाल दो और सिप लेते रहो फिर थोड़ा सा, क्योंकि आपका ड्राई हो रहा है ना। और एक और टिप बता देती हूँ, अगर आपके पास इस वक्त टॉफी रखी हुई है कोई आस पास, तो वो अपने मुंह में डाल लीजिए, स्ट्रिप्सिल्स या कुछ भी, तो आप देखेंगे अचानक से डाल आपकी लिया वो मैंने डाल लिया, स्ट्रेप्सिल अच्छा विक्स अभी मैं सब कर चुकी हूँ, मेरी खांसी ही नहीं रुक रही। तौबा। नहीं, अल्लाह ताला आपको शिफा दे, हम सब दुआ करेंगे जल्द से जल्द। जो है यार, ये थैंक बड़ी यू, तकलीफ थैंक दे यू। होती है। ओफ आई नो। तौबा। खैर हाँ, मैं पता नहीं क्या बोल रही थी, तो आई लूज ट्रैक टू। यू आर सेइंग कि वी हैव ऑल ओन ब्यूटी स्टैंडर्ड्स, हम किसी भी तरीके से सेटिस्फाई होते ही नहीं है। हमें जो है आई ऑल्सो वांट टू शेयर माय थिंग, आई एम देयर कोर्स इंस्ट्रक्टर एंड आई एम ऑल्सो हैव सम लिटिल वेट ना, मतलब मैं जो हूँ अकॉर्डिंग टू माय एज और टू माय डेजिग्नेशन मेरी फिजिक वैसी नहीं है। तो अक्सर लोग मुझे, मैं किसी दावत में जाऊं तो लोग मुझे कॉम्प्लीमेंट ये नहीं करते कि दैट यू लुक गुड, your dress is good. The first thing which I have to listen is that कुछ खाया करो, कुछ खा लो, क्या मसला है, खुश नहीं हो, ये वो यही चीजों से स्टार्ट होता है मेरा। मुझे कभी किसी ने हाँ, घर वाले कॉम्प्लीमेंट ये कुछ कह के, खिलाते नहीं है। हाँ मैं क्योंकि शादीशुदा हूँ तो अक्सर ये सुनने को मिलता है कि क्या मेरे मसला साथ है, भी यही खुश है नहीं हो। पूरा। तो मतलब उन्हें लगता है कि शादी के बाद तो मोटा होना ही चाहिए, कैसे नहीं हुई तुम मोटी, तो इट्स मीन कि तुम खुश नहीं हो क्योंकि तुम मोटी नहीं हुई हो। तो ये इस तरीके के मसले मसाइल, बंदा इतना सोच समझ के तैयार होके गया है किसी दावत में, तो उसने कपड़े पहने हैं, उसने बाल बनाए हैं, उसने मेकअप किया है, लेकिन वो ट्रू, कुछ नजर नहीं आ रहा ट्रू। सिवाय वेट के अलावा। तो हाँ, बंदा बिल्कुल, सोचता है दैट्स कि हाउ यार पीपल कुछ तो आर। आप कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि एटलीस्ट यू हैव अ नाइस ज्वेलरी और समथिंग। नहीं, इसके अलावा मेरी पूरी दावत में यही गुजर जाता है, कुछ खा लो, तुम्हें मसला क्या है, तुम्हारे साथ मसला क्या है, अच्छा भाई ठीक है। और मैं फिर घर आ जाती हूँ। तो तौबा। ये सीन है। अच्छा, मैं ना थोड़ी, एक वक्त आ गया था कि मैं थोड़ी ना बदतमीज भी हो गई थी। मतलब मुझसे कोई हाँ, पूछता ना, हो जाते हैं, बिल्कुल मैं आई बहुत चिढ़ रिलेट। जाती हूँ। मैं मतलब ऐसे बिल्कुल। ऐसे जवाब दे चुकी हूँ कि मुझे एक आंटी मिली थी एक दफा। मैं मतलब अपने घर के बाहर वॉक कर रही हूँ, हम्म। मुझे आगे पूछती है, एकदम से मुझे देख के ना, हाय क्या हुआ। अब मैंने उनकी शक्ल देखी, मैंने बोला क्यों, आपको अपने खसम का मुझे रिश्ता भिजवाने है या बेटे का। तो वो आगे से और वो हो गई अजीब सी, बोलती है देखो सही। कैसी बदतमीज लड़की है, मैं अफसोस कर रही हूँ और बदतमीजी कर रही है। मैंने बोला हाँ किस चीज हाँ का बिल्कुल अफसोस कर रही है, मतलब सही। क्यों क्यों आगे चलते फिरते लोगों से हमने तो नहीं अफसोस कर कहा रहे हो। है, बिल्कुल हमने तो नहीं कहा है कि आप हमारे साथ अफ़सोस करें, हमें सिम्पैथाइज़ करें, हमें कोई हाँ, प्रॉब्लम नहीं है। लोग हमें फ़ील कराते हैं कि ये हमारे साथ एक प्रॉब्लम है। और यकीनन एग्जैक्टली। हम और फिर उसपे हम रूड भी नहीं हो सकते, हम उल्टा जवाब भी नहीं दे सकते, क्योंकि वो भी हाँ, हमारी ही बदतमीज़ी कहलाएगी। तो बिल्कुल ये हमारी सोसाइटी में कुछ इश्यूज़ हैं। हमारे यहाँ लोगों को ना मोटा चाहिए, ना दुबला चाहिए, ना लंबा चाहिए, ना छोटा चाहिए, ना काला होना चाहिए, ना बहुत गोरा होना चाहिए। लोग सूरजमुखी, आपको शायद पता होगा, ये जो जो बहुत ज्यादा गोरे हो जाते हैं, उन बेचारों को यार ये तो बिल्कुल नजर ही नहीं आ रहे, ये तो ऐसे हैं। हाँ, मतलब काले हैं तो आपके साथ प्रॉब्लम है, आप गोरे हैं तो प्रॉब्लम है, आप कम पढ़े लिखे हैं तो प्रॉब्लम है, ज्यादा पढ़ लिए बिल्कुल हैं तो बिल्कुल, प्रॉब्लम हाँ है कि तो अब भी इतनी पढ़ ली प्रॉब्लम है, है। इसका इसका दिमाग खराब हो गया है, जॉब करती है तो प्रॉब्लम है, जॉब नहीं करती है तो प्रॉब्लम है। हाँ, कुछ हमारे यहाँ करती लोग नहीं है किसी मतलब। हाल से खुश नहीं है। एग्जैक्टली, दे बोलता है ना कि वो आए बिजनेस के स्टूडेंट्स हैं सारे। आई एम हाँ, श्योर अगर आप लोग ने वो मैस्लो की हायरार्की ऑफ हायरार्की नीड, पढ़ी जी थी। जी 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 हाँ, जी। तो उसमें जो वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाला आता है ना पार्ट, आई डोंट बिल्कुल। थिंक कि हमारी, एटलीस्ट हमारी सोसाइटी में हाँ। कोई सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक पहुंच सकता है। सही मतलब बात इट्स है। इम्पॉसिबल, बिकॉज सही। the the demands that you have to fulfill around you know, लोगों को, and it is a thing। ये सिर्फ बोलने की बात है कि लोग क्या बोलते हैं doesn't matter, it does matter। you do बिल्कुल। at least once तो आप उसके बारे में सोचते हो ना। हाँ यार, जरूर, वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स, इट्स अ नेचुरल थिंग। जब भी हमारे मजहब के अंदर जो है, हमारा कुरान भी हमें जो है इंडिकेट और हमें बाकायदा इस चीज के बारे में एम्फसाइज करता है कि आपकी जबान के शर से, यानी कि आप अपनी जबान से सिर्फ बेहतरीन अल्फाज निकालिए,
दूसरों के दिल बिल्कुल आजारी मत कीजिए। ये हमारा मजहब यूं बिल्कुल उसको एक कंपलसरी और एक हाई डीड के तौर पे डील करता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ लोग इस चीज को समझते नहीं है, लेकिन उनको लगता है कि जैसे एक बड़ा मैं खूबसूरत कहीं कोटेशन पढ़ रही थी कि कुछ लोग कहते हैं हम सच्चे हैं तो इसलिए हमारी जबान कड़वी है। तो उस जगह बिल्कुल था ये कि दिस आप इज सल्लल्लाहु अलैहि बुलशिट। वसल्लम से ज्यादा तो इस दुनिया में कोई सच्चा इंसान नहीं आया, लेकिन आपने हाँ कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, आपने कभी किसी को कोई ऐसी बात नहीं करी, चाहे वो काफिर ही क्यों ना हो, कि उसको महफिल में बैठ के उसकी दिल आजारी की हो। कोई आपको ऐसा रिकॉर्ड नहीं मिलता है कि उन्होंने किसी को जो है कुछ कहा हो। ठीक है, तो बिल्कुल हमारे यहाँ ये एग्जैक्टली। भी एक लोग सच्चे होने के दावे के ऊपर लोगों की दिल दुखा देते हैं कि हम तो बहुत सच्चे हैं, हम सच्ची बात करते हैं, वी आर स्ट्रेट फॉरवर्ड, हम तो जो है लगी लिपटी नहीं करते। तो भाई आपसे किसने कहा है कि आप ऐसी सच्ची बात करें जिससे आप लोगों के दिल दुखाएं? आपसे तो कहीं पे भी इसका कोई नहीं मिलता है कि आपने अगर सच्ची बात करनी है तो कड़वी ही बात करनी है। सच बोलने के तरीके होते हैं, तो लेकिन नहीं, हमारे यहाँ लोग अपने आप को इस एक्ट को भी जस्टिफाई करते हैं कि हम सच्चे हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, हम लगी लिपटी नहीं करते और ये These are just stupid classifications and I've never believed on them. मेरे खुद के ऐसे दोस्त हैं, कोई भी बात करनी हो भाई हम तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। भाई that's not being straight forward, that's not being blunt. और बिल्कुल, दूसरी की दैट इज जिंदगी में आपको क्या रूडनेस है। काम, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड होके आपको करना भी क्या? सही बात है। एग्जैक्टली आप क्या हासिल करना चाहते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड होके? बिल्कुल मतलब आपका मकसद किसी की इस्लाह करना है, अगर आपको किसी को कुछ गाइड करना है, आप उसको अच्छे अल्फाज के साथ गाइड कर सकते हैं। ठीक है, आप बहुत अच्छे लॉयल फ्रेंड हैं, आप अल्फाज का अगर आपको नहीं ये समझ कि किन अल्फाज के साथ किसी को गाइड करना है, तो इससे बेहतर है आप अपनी जबान बंद रखें। किसी का दिल दुखाने से बेहतर है कि आप फिर उसको छोड़ दें उसके हाल पे। तो लेकिन हमारे यहाँ बिल्कुल डीमोटिवेट करके लोगों को लगता है कि हमने उसको उसकी असलियत बता दी, उसको सच्चाई बता दी कि तुम अच्छी नहीं लगती हो इस ड्रेस में, और तुम ऐसी हो और तुम वैसी हो। तो हाँ बस हमने सच्चाई बता दी उसको। बिल्कुल बिल्कुल दिस इज व्हाट हैपेंस, दिस इज व्हाट मैं आपको एक लिटरली एक एग्जांपल दूं ना। अभी फ्यू डेज बैक मैं बैठी हुई थी, अ वुमन केम इन विद, उसकी कोई बच्ची होगी जो आई थिंक 4-5 साल की होगी, छोटी सी बच्ची। अब वो जब ऊपर आई ना तो वो जो बच्ची थी, शी लुक्ड एट मी एंड शी स्माइल्ड। सही है, वन थिंग दैट माय मदर टोल्ड मी, नेवर फ्राउन अपॉन अ चाइल्ड। सही है, they live in a fairy tale. Never tell them that people aren't good. So whenever you see a child, smile and they will smile back. And that child, she smiled at me. तो मैंने भी उसको स्माइल करके ना हल्का सा वेव कर दिया। उसकी अम्मा ने आके मुझसे एकदम से पूछ दिया, क्या हो गया है तुम्हें, जल गई थी? मतलब ऐसे जैसे एक तो मैं उनके साथ बचपन में खेल कर बड़ी हुई हूँ, जानती तक नहीं मैं उस औरत को। तो मुझे ये बात उस वक्त इतनी हिट करी, मैंने बोला उसको, मैंने बोला आप जैसे लोगों की वजह से दूसरे लोग घरों से नहीं निकलते। मैंने बोला अरे आपकी जो छोटी बच्ची है ना, ये आपको देख के बड़े होगी यही करेगी। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल वो यही करेगी, वो मासूम बच्चा है, उसको नहीं पता। वो जो देख रहा है, जो सुन रहा है, जो उसके दिमाग में नेचर एग्जैक्टली नर्चर की डिबेट पड़ी हुई है ना, तो उसको जैसे नर्चर कर रहे हो वो वैसे ही नर्चर होगा। बिल्कुल अब मेरा जो माय पॉइंट वाज कि देखिए माय मदर वाज अ साइकोलॉजिस्ट, मेरी सारी खालाएं वालाएं भी एवरीवन रिलेटेड टू द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी, मतलब दे रेज्ड मी in a way that I'm very confident and I'm comfortable in my own skin. सही है, माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ माशा अल्हम्दुलिल्लाह। बट व्हाट अबाउट द women जो लिटरली घरों में बंद होती हैं? मेरी अम्मा, ये जो आप अभी सूरजमुखी की बात कर रही है ना, मेरी अराउंड 30+ बॉडी इज कवर्ड इन विटिलाइगो टू। सिर्फ बर्न नहीं है, आई हैव विटिलाइगो इवन। ये जो सूरजमुखी हो जाते हैं ना आहिस्ता आहिस्ता का होता है, इफ यू सीन माय वाइट स्पॉट्स दैट्स विटिलाइगो। तो देयर वाज दिस गर्ल, सही है, वो मेरी अम्मा के पास काउंसलिंग के लिए आई। उसकी सिर्फ आंख के नीचे एक पैच था और उसने बोला कि वो महीनों से घर से ही नहीं निकली। एंड व्हेन शी सेंट हर पिक्चर टू माय मदर, शी वाज डूइंग ऑनलाइन काउंसलिंग। तो शी वाज सच अ ब्यूटीफुल वुमन, मैं आपको नहीं बता सकती। पठान थी और इंतहाई खूबसूरत औरत थी। और मैं उसको देख के हो गई कि ये देखो, क्यों, किस चीज, लोगों के डर से।
घर वाले भी उसके ऐसे ही होंगे ना, यही यही बोल रहे होंगे यार यहाँ निशान आ गया। क्यों क्यों हम इस चीज को एक इतना बड़ा इशू बनाते हैं? मतलब मैंने वो जो नंद नहीं, क्या नाम था उसका, जलन, एक तो मुझे नहीं पता व्हाई आई एंड अप वाचिंग दीस ड्रामास टू। उसमें एंड में दिखा रही है कि जी बहुत उसने बुरा किया था तो वो जल गई, ठीक है, जल गई तो अब वो, इससे बेहतर तो उसको मौत ही आ जाती। अब नहीं, मैं तो देख के चले, मैंने ओवरलुक भी कर दिया कि इट्स बुलशिट। व्हाट अबाउट द वुमेन जो ऐसे ही महीनों से घर में बंद है, टीवी देखनी है और वो ऐसी चीज देखें? What if they actually commit suicide? And I kid you not, there are a lot of women who commit suicide just because of this thing, that they're not beautiful. मैं या आपको उनका अपनी बात कॉन्फिडेंस बताऊं शैटर ना, होता है, वो जो है वो बिल्कुल सोसाइटी होता में है। वो पिस रही होती है, वो लोगों के जुल्म और बातें आराम से सुनती हैं, चाहे वो हस्बैंड की हो या किसी की भी, कि हाँ मे बी वी हैव नॉट दैट मच ब्यूटी स्टैंडर्ड्स, तो हम जो है वो बात सुनते हैं, किसी की कोई हमें डिग्रेड कर सकता है, वो आराम से अलाउ कर देती हैं। तो बिल्कुल आपकी बात से मैं सेकंड करूंगी कि ये हमारी सोसाइटी को पूरे ओवरऑल हमारे दिमागों में बसाया गया है, ये स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं हमारे यहाँ। ये सब कहने की बात है, स्टार्टिंग में रबाब ने शायद कहा था, सॉरी रमशा ने कहा था कि अखलाक से स्टार्टिंग होती है। बिल्कुल हमारा मजहब तो ये कहता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल आपकी बात सही है कि हमारे यहाँ सबसे पहले फिजिकल अपीयरेंस से हम लोग जज करते हैं बिल्कुल लोगों को। अगर कोई बिल्कुल बंदा अच्छे कपड़े नहीं पहना हुआ, चाहे वो खूबसूरत है लेकिन कपड़े अच्छे नहीं पहना हुआ, तो हमें लगता है हमें इससे बात नहीं करनी चाहिए, ये तो एवं ही है, इसको क्या नॉलेज होगी। कोई उर्दू में बात कर रहा है, किसी की जबान लड़खड़ा रही है, किसी का एक्सेंट खराब है, तो उसको एक्सेंट पे टोका जा रहा होता है कि उसका एक्सेंट जो है वो उसे ये बोलना नहीं आता है, इंग्लिश सही से बात करनी नहीं आती है, उर्दू बात करनी नहीं आती है। तो हमारे तो किस किस चीजों में क्या क्या टोका जा रहा है, तो वो तो कोई मुकाबला ही नहीं है ना, मतलब हमारे यहाँ एग्जैक्टली। जो सो है तो मैं पता है, ऑन अ वेरी सीरियस नोट, मैं आपको बताऊं, मैं मीडिया की फील्ड में ही काम करती हूँ, ठीक है, और मैं भी ये सब देख ही रही होती हूँ हर अगले दिन दूसरे दिन। I thought on a very very serious note, and I'm going to start my own blog and I'm going to start talking about these things. You won't believe, जब मैंने रिसर्च की ना, पाकिस्तान में कितनी आबादी आई डोंट नो, उसमें आपको हजारों लाखों की तादाद में ब्यूटी लाइफस्टाइल फैशन ब्लॉग्स मिलेंगे. There is not one blog in Pakistan that talks about stereotypes or standards of beauty. I was shocked. क्यों? क्योंकि हमारी मार्केट डिमांड ये है ना, हमारी मार्केट डिमांड ये, लोग ये जानना चाहते हैं कि कौन से प्रोडक्ट से ब्लेमिशेस कम लगाए होंगे, गोरे हो जाए। हाँ, तो यू नो फॉलो दोस पीपल. देयर इज नॉट वन ब्लॉग उसपे. my boss she told me to start my own blog. She said हमारे इतने contacts भी हैं, ये भी हैं, तुम करो. तो मैं I actually thought I'm going to start doing that in just a second. हाँ, तो मतलब ये मतलब बहुत बातें हैं ना. मैं यहाँ पे why I agreed to come here was that maybe कितने लोग होंगे इस क्लास में, 30-40. I thought maybe I could just I'll tell you to do something today. For today, सही है, गो घर पे बाहर कहीं पे भी जाओ ना, किसी भी रैंडम को, अम्मा को ही पकड़ के अगर आप एक कॉम्प्लीमेंट दे देना, अरे अच्छी लग रही है यार, you will see the smile on their face. And I actually do that. मैं चलते फिरते लोगों को, अगर मुझे किसी का स्कर्ट अच्छा लग गया, someone's wearing good clothes or whatever, someone has a good smile, I compliment random people, and trust, you see the smile on their faces, it's priceless. It's literally priceless. मतलब why? और मैं आपको बताऊं, अगर आप किसी से मेरे कोई इंसिडेंट के बारे में मुझसे पूछता है ना, तो मुझे ये नहीं होता that I have scars or something. You know what? मुझे ऑटोमेटिकली ना मेरा वो भाई याद आ जाता है जो गुजर गया था. तो ये बात है ना कि किसके कैसी मेमोरीज रिलेटेड हैं, एसोसिएटेड हैं इन चीजों से, आप उनको क्यों खरीदना? आप यकीन नहीं करेंगे, लोगों ने मुझे कैसे कैसे रैंडम चलते फिरते लोगों ने मुझे कैसे टोटके बताए. एक सेकंड.
मुझे रैंडम चलते फिरते लोगों ने ऐसी बातें की, ये पानी लगा दे, ये पानी लगा लो XYZ तो ठीक हो जाएगा। मैं अच्छा बहुत शुक्रिया आपके बताने का, मैंने पता नहीं क्यों इतने उसे I'm on the phone, can you please give me like 5 minutes, तो ये पानी लगा लो तो पता नहीं ये ठीक हो जाएगा। भाई पानी लगाना होता, मैं इतने, मेरे घर वाले इतने लाख खर्चते मेरे इलाज पे, मतलब ये स्टूपिड बातें। और ये कोई कैसे सोच सकते हैं कि घर वालों ने इलाज नहीं कराया होगा? भाई आपके माँ बाप से आपसे ज्यादा कोई प्यार करता है? उनको आगे पूछ रहे हैं। और एक तो ओ माय गॉड, ये प्लास्टिक सर्जरी का ये जो स्टार प्लस से हमारी सोसाइटी में कॉन्सेप्ट आ गया है ना कि एक पट्टी में शक्ल बदली हुई होती है, ये तो सब इतना बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है। यू वोंट बिलीव, मुझसे कितने लोग प्लास्टिक सर्जरीज का पूछते हैं। प्लास्टिक सर्जरी नहीं कराई मेरी, I've had numerous plastic surgeries. Literally after every 3 months, I've had now plastic surgeries. And कि आपकी पट्टी उतारो तो शक्ल दूसरी हुई है, ऐसा नहीं होता। This is all television and people believe it. अभी कौन सा एक और मैं stupid सा ड्रामा देख रही हूँ, नंद, उसमें भी यही हुआ, उसकी एक पट्टी उतारी, वो जवेरिया निकली अंदर से। मतलब it's so stupid, that's so stupid। और नंद में भी लेट मी टेल यू, उसमें भी यही बात करी कि उनकी हमें प्लास्टिक सर्जरी करनी पड़ेगी। वो पूछता है क्यों भाई? बोलता है ऐसे तो वो अपनी शक्ल देख के खुद वो जी नहीं पाएंगी। मतलब यार कम ऑन, ये कैसी बातें हैं? और ये सारे फजूल ड्रामे ना AR भाई बनाते हैं। मैं भी कुछ बोलना चाहूंगी। हाँ मैं यही बोलना चाहूंगी कि लोग इस तरीके से बोलते हैं कि जैसे कि आप बहुत ज्यादा बीमार हो गए हो, या इंसान को ये शुक्र अदा करना चाहिए कि वो उसको कोई बीमारी तो नहीं है ना। दुनिया में कितनी सारी बीमारियां, कैंसर है, थैलीसीमिया है, वो तो नहीं है ना। जस्ट ये चीज तो कोई, लेकिन लोग इस तरीके से जताते हैं जैसे आप बीमार हो या मतलब आप ना नॉर्मल नहीं हो, आप कुछ स्पेशल हो। बिल्कुल। और मैं आपको ये चीज बहुत बताऊं, बुरी लगती है। ये सिर्फ ना शुक्री की बात है। मैं आपको बताऊं, मैं कितने महीने ICU में रही हूँ ना, मेरे साथ की बातें यार, मैं अपने साथ के लोग देखती थी। मेरे साथ एक बच्ची थी, ठीक है, वो मेरे साथ बेड शेयर करती थी, एंड दोज वर द ओनली पीपल आई यूज्ड टू टॉक टू, क्योंकि घर वालों को तो मिलने देते नहीं थे। उस बच्ची के दोनों हाथ काटे हुए थे यार, उसका कुछ मुंह वो नहीं चला था, उसके हाथ और चेस्ट वाला एरिया जल गया था। उसके दोनों हाथ काट दिए थे, उसकी नसें जल गई थी, और उसका हाथ ना जाया हो गया था। मतलब सिर्फ, मतलब कितनी ना, अगर मैं इस बात पे बैठ के, होता है मुझे भी, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, कभी चांद रात को बैठे हैं, सब मेहंदी लगा रहे हैं, मैं नहीं लगा रही, ठीक है, दिल में मेरे भी बात आती है, बट देन मुझे वो लड़की याद आती है जिसके हाथ काट दिए थे। तो हम बोलते हैं ना, अपने से ऊपर को नहीं देखना चाहिए कभी भी, इंसान नाशुक्री करता है। you should be thankful to God। मतलब literally you guys have no idea that how blessed all of you are। एक छोटी सी चीज अगर नजला होता है और नाक बंद हो जाती है तो इंसान कितना तंग हो जाता है। हम जो ये रोज सांस भी ले रहे होते हैं ना, we take everything for granted। So all, अगर बंदे की नाक नहीं होती तो सांस नहीं ले पाता। हाँ, तो the reason that I wanted to do this session today was that, we have to stop saying things to others। और अगर कोई बोल रहा है ना, अगर कोई बोल भी रहा है तो उसको उसी वक्त टोक दो, फौरन उसको टोक दो, बोलो नहीं क्यों। और वो भले बदतमीजी में ही हो, वो अगली दफा ना वो बंदा फिर बोलने से पहले सोचेगा, ट्रस्ट मी सोचेगा। वो औरत भी जिसकी बच्ची के सामने मैंने उसको सुना दी थी, वो भी सोचेगी अगली दफा ऐसे किसी को बोलने की 2 सेकंड पहले, ताकि मेरी बेइज्जती ना हो जाए सबके सामने। तो ये लोग जिनको पता नहीं है ना, उनसे मुंह मत मोड़ो, उनको बताओ आप ये बात गलत करी और आपकी इस बात से मुझे तकलीफ हो रही है, आप ये मत करें। अगर हम जवाब दे सकते हैं तो आप दें, क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं जो जवाब नहीं दे सकते। Am I right? Yes, ma'am. You are Yes, right. ma'am.
मैम आप बहुत मैं लकी हैं कि आपके पास साइकियाट्रिस्ट थी आपकी मदर। पर हमारी जो लड़कियां हैं, मतलब जो हम इस फेस से जो कोई भी गुजरता है, ज़रूरी नहीं किसी के पास स्कार फेस पर स्कार्स वगैरह हो तभी परेशानी हो। हाइट, वेट, मैंने अभी स्टार्टिंग में ही बताया जो चीज़ें नाम दी, क्योंकि मैंने आगे पीछे हर जगह यही देखा। मेरी भाभी का वेट गेन हो रहा है, वो बेचारी उस पर परेशान है। मेरी बहन का वेट कम है, वो उस पर परेशान है। आपके पास साइकियाट्रिस्ट थी, पर बहुत से में नहीं साइकियाट्रिस्ट नहीं होती, और पेरेंट्स इस चीज़ पर फोकस भी नहीं करते। मुझे लगता है ये फैमिली से होता है, फैमिली सपोर्ट नहीं करती। बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है. You're 100% right. I was very lucky to have such a supportive family. I was very lucky. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह. मैं लिटरली अगर यहाँ पे आज खड़ी हुई हूँ, बात कर रही हूँ, बाहर काम कर रही हूँ, शूट्स कर रही हूँ, तो वो इसलिए कर रही हूँ कि मेरी अम्मा ने वो कॉन्फिडेंस डाला मुझ में. एंड आई एक्चुअली थिंक आई एम ब्यूटिफुल. I don't think I need, you know, a lot of cosmetics or something to hide my scars. मैं literally, अगर मैं I went to Nabila's once, शादी के लिए I wanted to get my makeup done. तो आप जो makeup artist थी, she started concealing my scars. I asked her, I was like, why are you concealing? I don't want them hidden. मुझे बहुत light coverage चाहिए. सही है. तो उसपे she said, क्यों मैं ये cover कर देती हूँ ये वो. तो ये वो उसकी गलती नहीं थी, क्योंकि वहां पे जितनी जाती होंगी ना वो ये करती होंगी कि ये यार ये पिंपल स्कार्स हैं, इनको छुपा दो. ठीक है, ये यहाँ पे ब्लेमिशेस हैं, इनको छुपा दो. मतलब क्यों छुपाने यार. एवरीवन बिलीव्स इन गॉड, राइट. और अल्लाह ने तो अपने हर इंसान को बिल्कुल ठीक बनाए. उसने तो कोई गलती नहीं की बनाने के लिए, और उसको तो सभी प्यारे. तो ये हम कौन है ये जज करने वाले या ये फैसला करने वाले कि भाई ये खूबसूरत है ये नहीं है. खूबसूरती को तो छोड़ें, ये जहन्नुमी है भाई. भाई आप कौन है बताने वाले वो जहन्नुम. हमारे नबी ने नहीं बोला आज तक कि ये जहन्नुमी है किसी एक इंसान को. आप कौन बोल रहे हैं, आप फैसला करेंगे. मतलब इट्स we have a very, pardon my language, we lived in a fucked up society. We do. The norms that we have over here, कुछ और करें ना. अभी मैं आपको बताऊं, मैं आई एम कंसिडर्ड एबनॉर्मल इन द सोसाइटी बिकॉज people like me are not normal. And trust me, I'm saying this out of my experiences that I've had as a child. I was alhamdulillah very lucky. मेरी तो टीचर्स पता है कैसी थी. I remember मैं स्कूल में थी और मैंने जो 1 साल मिस आउट कर दिया था ना, अरे मेरी टीचर्स मेरे घर आती थी, मुझे कवर कराने के लिए अपने घर बुलाती थी, घंटों बिठा बिठा के पढ़ाती थी. मेरी तो I've had, और मेरे अभी तक उनके दिमाग की ना मेरी पिक्चर्स छपी हुई हैं उनकी. I still go meet them even because they were such wonderful women. Oh, खैर तो this is all. I think मैं वो बोल चुकी हूँ, और मैं शायद 1 घंटा भी और बोल दूंगी. मैं बहुत बोलती हूँ. But the bottom line is that we have to stop this. No one gets to decide who's beautiful and who's not. I think we should all have the right to feel comfortable in our own skin. और ये जो हेलो इफेक्ट होता है ना, ये होता है. आप देखो कि कोई बहुत खूबसूरत इंसान होगा ना, आपको वो वैसे अच्छा लगेगा. And this is proven in many psychological studies too. Even I've had psychology as a subject in my A levels. And I remember reading this, studying this, कौन सी study थी वो यार, facial expressions of with babies. वो babies पे try करते हैं. मतलब everyone has a, मतलब ये हमारे ना ऐसी nurture होता है ना हर society में कि that's how people are. मतलब the first thing they see in you is how you look. And you know what's the second thing? Not ikhlaq, the way you smell. मेजॉरिटी अगर आपको बहुत कोई खूबसूरत इंसान देखे ना, आप उसके पास खड़े हो और आपको बदबू आए, आप उससे 3 कदम पीछे खड़े हो जाएंगे. तो ये डेटा ना मैं आपको स्टडीज के रिलेटेड बता रही हूँ, जो बहुत बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट्स हो चुके हैं, सोशल एक्सपेरिमेंट. और ये इखलाक और दिल, ये तो बहुत बात की कहानी होती है. ये आप बंदे को आपको जब बंदा पहली मुलाकात में ही नहीं भाया, आप उससे दूसरी दफा थोड़ी ना मिलोगे.
And that's true, that's how it is. दूसरी तीसरी दफा मिलोगे तो आपको पता चलेगा अच्छा भाई चलो ये दिल का भी अच्छा इंसान है. But you know, that's the harsh reality of the world that we live in. But let's do something to change it, shall we? Hello. Hello. हाँ जी. Yes, ma'am. Oh, khair, chale. I was why don't all of you go and follow my Instagram page? My name is Parise Afreen, and I will soon be posting a lot of content on it. And I hope to speak to you guys again soon. I think 4 baj chuke hain. Yes, ma'am. Inshallah. Inshallah. Chale, okay. Take care. It was lovely talking to Okay. you. Thank you, Miss. Thank you. Okay. Miss Madiha, would you like to say something? Sure. First of all, I'm very much thankful to Miss Parisha for their precious time. और मुझे भी इतना मजा आया. I think that's the first webinar जिसमें मैं full on interaction कर रही थी और मैं involved थी. कुछ मेरे दिल के भी जख्म थे जो मैंने निकालने की कोशिश की है. So बिल्कुल मेरा ख्याल से अगर हमारी जो ये हमारी यूथ है अगर वो इस चीज को समझे और ये अच्छी चीज हमारे मुझे अब दिखती है कि हमारे एटलीस्ट लोग रियलाइज कर रहे हैं. आहिस्ता आहिस्ता ही चीजें चेंज होती हैं बिकॉज वही बात है कि हमारी अपब्रिंगिंग के अंदर ये शामिल हो चुका है एंड अनफॉर्चुनेटली ये हमारे फेम ऑफ रेफरेंस में कहीं ना कहीं मौजूद है. सो हम जानते बूझते कभी नहीं करते लेकिन ये है हमसे क्योंकि हमारी इस तरीके से जो है वो ब्रिंगिंग हुई है कि हमें लगता है कि हाँ ये तो हमने कह दिया और हमें अंदाजा बाद में होता है. लेकिन एटलीस्ट हमारे अंदर अब इस यूथ के अंदर रियलाइजेशन है. आई होप सो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर हम इस चीज को जो है वो चेंज कर सकें कि हम इन चीजों को ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को इस स्केल के ऊपर कभी भी जो है वो ना करें, काउंट नहीं करें कि ये चीजें होती हैं तो बंदा ब्यूटीफुल है और नहीं है. सो आई होप सो कि हम अपनी सोसाइटी के अंदर एक बेटर चेंज देखेंगे इन फ्यूचर इंशाल्लाह. और जिसमें हमारी ये यूथ यानी कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, आप जैसे लोग हैं वो कंट्रीब्यूट करेंगे इस सोसाइटी के अंदर चेंज लाने के अंदर. तो आहिस्ता आहिस्ता ही होगा ये चीज, फौरन से तो नहीं हो सकती है लेकिन एटलीस्ट इसके ऊपर बात हो रही है तो मुझे उम्मीद है कि वो कल को जाके उसके ऊपर जिस चीज पे बात होना शुरू हो जाए वो चीज होप सो कल उसके हवाले से हम चेंज को एक्सपेक्ट कर सकते हैं. सो आई एम वेरी मच थैंकफुल टू मिस Parisha. You are beautiful from inside and outside also. Thank you so much, Miss Madiha. It's really a good time with you. और मुझे उम्मीद है कि मेरे स्टूडेंट्स ने भी बहुत एंजॉय किया होगा और बहुत कुछ सीखा होगा. Chale, I'm glad. I hope to speak to you soon. Thank you so Thank you, ma'am. Thank you, Thank Ji. you, girls. Have a good luck. Have a good day. Thank you, ma'am. Best of luck for your future ventures. You too. Thank You you, too, dear. sweetheart. Bye-bye. Allah Hafiz. Okay. Allah Hafiz. Thank you, girls. Thank you, Miss Madiha. Okay, Allah Hafiz. Allah Hafiz.